Namaste everyone, my name is Natali Deepani and I am from the Wipro Athyan project. Today we will be doing our Part A Elective 1 project, which is Then versus Now, which was a project which we had to do an interview alongside one of a person with our age and one of a person with our grandparents' age regarding a festival we wanted to talk about. So the festival we are talking about is Ganesh Chaturthi or Vinayaka Chaturthi. So let's talk to Didi here. So Didi, my first question was the festival Ganesh Chaturthi. Do you celebrate it? How you celebrated, like when your parents celebrated it at that age, at that time? I think for everybody, Ganesh Chaturthi is like a favorite festival. Okay. But there is obviously a lot of differences from our parents' generation to our generation. It was more like devotional and spiritual oriented in that generation. Now it's mostly like songs and all that. But still, I feel like we celebrated really well. Yes, that's great to hear, Didi. My second question was that what has changed from then to now? What are the changes that you feel? I feel like the focus is more on enjoyment rather than the festival itself. Like DJ ho gaya, dance and all that. The focus is more on that basically. Like getting really fancy looking Ganeshas, not thinking about the environment and all. So I think that's definitely one of the bigger differences. Yes, thank you, Didi. Also, how does this festival contribute to the waste that we generate? Is there any waste that is generated? Oh my god, talk about waste. Every year, every Ganesh Chaturthi, we have a lot of POP that's going in Hussain Sagar. If you take, for example, like they are huge Ganeshas, so tall, and there's so much waste, and it is polluting the water, it is noise pollution. Talk about waste. It's just Yes, a lot of waste is generated. So, how is the waste produced managed right now? What do you think in your area, in other places? I don't know about the other areas. But in my community, in the locality I live in, we get a eco-friendly Ganesha made with mud, and after the 9 days, we do the Visarjan also in our park only. So that's the best way I can think of to manage the waste Yes. because it's eco-friendly, right? There's no POP. Yes. That's a great initiative that their community is doing. So, do you know anybody who celebrates this festival or event in a more eco-friendly manner, or what happens? Like, what happens to the waste? Do you know? Okay, so a lot of my relatives, they actually get a mud Ganesha. They make it themselves with clay, and then after they do the puja, they do the Visarjan at home only, and then the water is used for plants. So that's like the best way you can do the puja and the Visarjan, in my opinion. Yes. Now, consider things like decorations, firecrackers, disposable plates, cutlery, leftover food. What do you do about that? I think again that contributes to a lot of waste. I feel like we should, not waste so much food. Like count how many people are there and then make the food according to that. And if there is food that is still there, then I think we should give it to shelters because they really need food. Totally, yes. So, our question was, are there any eco friendly alternatives and how do they affect the environment? Eco-friendly alternatives in the sense the cutlery and stuff. Yes. Yeah, there are eco-friendly alternatives. There is this thing called istaraku. I don't know if what to say that. It's basically disposable plates made from leaves. Okay. And when you go to temples, they give you a bowl, right, which is made of leaves, actual leaves. So there are stuff like that that we can use. Yes. That's more sustainable. Thank you so much, Didi. We learned so much here. Now we will be interviewing the Nani, the grandmother, and we are going to be understanding how Ganesh Chaturthi is celebrated at that time over there. So,
Thank you so much. Hello everyone. Now we will be interviewing the Nani and let's interview. So hello Nani. हेलो बेटा. हेलो बेटा. यस तो आज हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं अबाउट गणेश चतुर्थी कैसे सेलिब्रेट होता है आपके जगह, मतलब आपके टाइम में कैसे सेलिब्रेट होता था गणेश चतुर्थी आपके जमाने में. वो घर में पूरा क्लीन कर लेते फर्स्ट. पूरा घर पूरा शुद्ध कर लेके गणपति को मट्टी से बनाते लाके. ओके मट्टी ला लेके गणपति बनाते घर में. आप लोग भी वो गणपति बना के रख के और उंडरालू बनाते. पुलिहोरा इंडालू और दही खाना दद्दोजनम बोलते. लड्डू ये पूरा ला के भगवान चढ़ा के उनके स्टोरी पढ़ते. स्टोरी उनके गणेश की स्टोरी पढ़ते और उनको फूल माला से सब अलंकार करके नैवेद्य चढ़ा के आरती दे के बाद में उनको स्टोरी पढ़ते. स्टोरी पढ़े बाद में कोई 5 दिन रखते, कोई 2-3 दिन भी रखते. लेकिन अभी के जैसा इधर बोलते उधर नहीं बिठाते गणेश की. बस्ती में एक गांव रहे तो एक वो वहां ही सब लोग जाके पूजा करना उधर. अरे गली गली में नहीं लगाते गणेश को. एक ही जगह कोई मंदिर बड़ा है नहीं तो बड़ा कुछ भी ग्राम पंचायत के वो रहते हाला रहते ग्राम पंचायत वापिस बोलते उधर लगाते. एक ही गणेश को सब दिन जाके उधर ही पूजा करते. वो 9 दिन रखते वो गणेश को. अभी सबके घरों में जो है उन्हें लगा लेते. किसी को दीवार नहीं रहता उन्होंने नहीं कर लेते. घरों में तो मट्टी से बनाते, खरीद के नहीं लाते गणेश. जब फिर वो गणेश को भी क्या करते घर में निमंजन करके झाड़ों को पानी से करके झाड़ों को जाता मट्टी. अच्छा तो मतलब पूरा का पूरा वो रीयूज होता है हर चीज. जैसे अभी तो हम पीओपी का यूज करते हैं, वो तो वेस्ट है बिल्कुल. हम नदियों को भी खराब कर रहे हैं बिल्कुल. तो नानी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपका जो ये फेस्टिवल है ये कंट्रीब्यूट करता था क्या कोई वेस्ट को? मतलब वेस्ट होता है ना, कचरा हो जाता है. जैसे कि अभी हम देखते हैं कितना नदी कचरे से अभी भर जाता है. आपके जमाने पे कोई कचरा ऐसा होता था? इतना नहीं होता था बेटा. फूल वो रहते थे ना, वो बहुत बड़ा इतना घरा नजदीक वैसे नहीं थे ना. कुछ बड़ा प्लेस रहता है जंगल के जैसा. हर गांव में भी हर सिटी भी इतना नहीं था नजदीक. हम मेरे शादी के जब तो उधर एक तामीरपेट पूरा ओपन रहता था. तो जब वो कचरा ले आकर फूल तो नदी में डालते, बॉडी में डालते फूल. उसके लिए क्या होता बोले फूल की तरफ से पानी शुद्ध होता. ओके हाँ. भगवान वो चढ़ाए से फूल डाले तो. यस. और दूसरा कचरा है तो जला देते. पूरा कागज कुछ भी रहते ना जला देते. लेकिन ऐसे फेंकते नहीं. वो प्लास्टिक कवर नहीं तो जब कागज के लिफाफा बनते थे. कोई शॉप में गए तो भी कागज में डाल के देते. रब्बा हो शुगर हो कुछ भी हो पेपर से बनाए सो. ये पेपर भी ऐसा वेस्ट नहीं करते. वो तैली बना पहला कवर आधा किलो 2 किलो 1 किलो सब बना के बनाने वाले रहते. उनको पैसे देके बना लेते शॉप वाले. उस शॉप में अपन गए तो उसमें डाल के देते थे अपने को. बिल्कुल. अच्छा. नहीं तो ज्यादा लेने गए तो कपड़े के तैली तो वेस्ट होता ही नहीं था असल. बिल्कुल. अभी हम देखते हैं कितना सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है. पूरे लेक्स और हर चीज कितना पोल्यूट हो जाता है. बिल्कुल. तो आपके इधर मतलब आपका कोई जो हमने इतना सुना इतना इको फ्रेंडली है, कुछ भी ऐसे कटलरी मतलब डेकोरेशंस होते हैं, फायर क्रैकर्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, खाना वाना कुछ ऐसे वेस्ट में जाता था? वैसा नहीं जाता था. पत्तल से पत्रोलियां ले लेते थे जब कुछ फंक्शन में तो कुछ भी. और थोड़ा लोग अपने पास तो मोस के वो पत्ता नहीं मिलते ज्यादा. ज्यादा कोई है तो खरीद के ला लेते. लेकिन ज्यादा था पत्तल से बनाए सो पत्रोली से लेते. वो एक करे बाद वो वेस्ट नहीं होता. वो पूरा एकदम होगा. वो क्या बोलते ये खेतों में डालने के वो एरू भी बनता. वो पूरा एक कचरा रहता ना जो पहले में एक जगह के दारा एक कुछ भी कुंडी नहीं तो एक डब्बा उस रख के वो पूरे उसमें डाले तो नहीं. वो पूरे अपने काटे से तरकारी और सब कुछ भी और डालता. क्या होता था वो उसको झाड़ों को खेतों में डालने का वो बनता था. क्या बोलते पाउडर एरू बोलते थे. वो उसके झाड़ों काम आता था. वो कोई भी लेकिन एक भी वेस्ट नहीं होता था. जो तो मतलब पूरे प्लांट्स भी हेल्दी हो जाते थे और कुछ वेस्ट भी नहीं होता था. और मतलब जो ये फेस्टिवल था वो शोबाजी के लिए नहीं था. मतलब इट वाजंट फॉर शो ऑफ. वो वैसा नहीं था. हाँ वो क्या बोलते अपना क्या बोलते अपना धर्म का सनातन धर्म बोलते ना अपन. उसके लिए अपन करते अपने भगवान अपने बड़े लोग कैसे करें गणेश चौथी यार इतवार भी एक भगवान के रूप से भक्ति रूप से करे. जब अभी कहीं वो क्या बोलते हैं शो कर रहे ज्यादा. शो ज्यादा कर रहे. जब कहीं नियम से रहते थे
हाँ पूजा करे बोलते 9 दिन नियम से गणेश चौथी को भी, और माता का नवरात्र भी, उगादी, संक्रांति, वो हर एक त्योहार भी एक बेनिफिट के त्योहार रहता था जब। बिल्कुल। और वो हर एक त्योहार में भी अच्छा बना ले खाते हैं ना, जब अपन न्यूट्रिशन के फूड खाते जब वो हाँ कालियों का तो कुछ भी खाते, लेकिन त्योहार अंकल लेके थे भी अपना अच्छा बना दाल, वो स्वीट के कुछ भी आइटम, अच्छा तरकारी, वो पूरा खाए तो क्या होता अपने को, रोज रोज नहीं हो तो भी जब त्योहार अंकल ले खाए तो भी हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता था। अभी तो सब लोग बाहर से ही खरीदते हैं, हाँ, वो वही तो बहुत सेम। गंदा है। बिल्कुल, इतना प्रोसेस्ड फूड। आओ नहीं खाना बेटा बाहर से, वो कब का उनका बनाता, कौन सा तेल डालता नहीं मालूम। अपन घर में शुद्ध अच्छा बना लेते, घर का ही खाना। बिल्कुल। हाँ, और वैसा नहीं खाना। थैंक यू सो मच नानी, आपने हमें इतना सब कुछ बताया। थैंक यू Thank you, सो बेटा। मच। थैंक यू। हमने इतना सब कुछ सीखा गाइस कि पहले के ज़माने के त्योहार कितने अलग थे और अभी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कितना डिफरेंस था इन दोनों चीज़ों में। बिकॉज वी अंडरस्टूड दैट पहले के ज़माने में लोग शो ऑफ के लिए नहीं करते थे, पर अभी के लोग अभी हम शो ऑफ के लिए ज़्यादा करते हैं। अभी लोग गणेश चतुर्थी में पीओपी का यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हमारे लेक्स और ये सब खराब हो रहे हैं। इन सबको वो करने के लिए हमें एनवायरमेंटली फ्रेंडली, इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और इनके ज़माने के टाइम पे लोग खुद से बनाते थे गणेश जी, कितना क्रिएटिविटी बढ़ता है इससे, और मोटर स्किल्स। इधर तो हम ये सब नहीं करते हैं, तो वी शुड अडॉप्ट इको फ्रेंडली गणेशा दिस ईयर। थैंक यू सो मच।